Hello students, good morning. Hope that you all are well at your home. Now we are going to start the third chapter of the history for the class 7th. The chapter name is the Delhi Sultans. So firstly we have to know what is Sultan. Sultans were the titles used for the rulers during the Delhi Sultanates, or you can say during the middle of the Indian history. They were also synonyms of the strength and powerful. ओके, अब यहाँ पर कहा गया है कि जो दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, इट मीन्स द पावरफुल रूलर्स ऑफ द Delhi. So in chapter 2 we saw that region like the Kaveri Delta became the center of the large kingdoms. Did you notice that there was no mention any other kingdoms with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. It means on the second chapter we discussed about the Kaveri Delta, Ganga and Brahmaputra areas, and Pal's dynasty, Ajmer, Indraprastha, and Gangaikonda, Cholapuram, and Bengal. Such type of the cities we discussed in the second chapter, but we did not discuss much about the Delhi because Delhi was came into existence in the 12th century as a powerful city. Okay, so Delhi first became the capital of the kingdom under the Tomar Rajputs. Under which Tomar Rajputs. So this is the important line. This is the important line for us. Delhi became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs in the very first time, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans of Ajmer, who were defeated in the middle of 12th century by the Chauhans, earlier who were known as the Chaumans. The Chauhans were belong to the Ajmer. Ajmer is nowadays in the Rajasthan. Yes. So it was under the Thomas and Chauhans that Delhi became an important commercial center. It means under the ruling of the Chauhans and Thomas also this is the dynasty who ruled over the Delhi. And so when Chauhan and Tomar rulers were ruling under the Delhi, Delhi became the commercial center on that time. Many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here, called Dehli wall, had a wide circulation. So, when there was the rich Jaina merchants who are living near the Delhi, and they also constructed several temples in the Delhi, near the Delhi, and the coins minted here called Dehli wall had wide circulation. This is the very important line for this chapter. Which type of the coins? Delhi wall coins was under the circulation on that time. Which type of the coins? Delhi wall coins was under the circulation on that time. Okay. चलिए थोड़ा सा अच्छा एक लाइन हम और करना चाहते हैं. Delhi फर्स्ट कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ द अंडर द तोमर राजपूत. ओके, अब चौहान के द्वारा हराई गई. सो नेक्स्ट इज द सो the transformation of Delhi into a capital,
that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultan in the beginning of the 13th century. It means Delhi was transformed. Transformed means modernized. Delhi was modernized on which century? On the century of the 13th century. On the starting of the 13th century. Okay. And we will discuss about the Delhi with the help of this map. This map is belong to the 13th and 14th centuries because this is also the period of the medieval history. So see, this is the river Ganga. दिस इज द रिवर गंगा. ये रिवर गंगा क्या हो रही है, यहाँ से फ्लो हो रही है. यस. सो मे बी आस्क यू क्वेश्चन ऑन विच बैंक, ऑन विच रिवर बैंक Delhi was situated, on which river bank this the Delhi is situated near the Yamuna bank, Yamuna river bank है. So here is the Firozabad, Firoz Shah Tughlaq, Firoz Shah Kotla. There is the stadium nowadays, Firoz Shah Kotla Stadium. हौस खास, सीरी, जहाँ पना है, दिल्ली कुआं, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी. कुतुब मीनार इज द वेरी फेमस मीनार. तुगलकाबाद, आदिलाबाद, these are the main centers. The Delhi Sultans built many cities in the area that we know as Delhi. So, Delhi, Delhi Kuan, Siri and Jampana. These are the cities which were built by the Delhi Sultans. So, learn the name of these cities. The city name is the Delhi Kuan, Siri, Jahanpana, Haus Khas, Tughlaqabad, Adilabad. These are the important cities of centers from that time. Now let us discuss about the next. The rulers of the Delhi. Here is the rulers of the Delhi. So Delhi was started by the Tomars. Tomars founded the Delhi, you can say. So early 12th century, 1165. Then Ananga Pal, he was also the Tomar ruler, 1130 to 1145. Chauhans 1165 to 1192. Prithviraj Chauhan was the famous king on that time. He was also known as the Prithviraj III. So 1175 to 1192. He was defeated with the Muhammad Ghori, and 1191 Muhammad Ghori was defeated by the Prithviraj Chauhan. So next is the early Turkish ruler. So firstly we have to know the rulers of the Delhi Sultanate. So Delhi Sultanate rulers were the according to the dynasty. Firstly the slave dynasty. It is also known as the early Turkish rulers because they started the system of the slave system in India. तो वही क्या करने लगे, वही जो अर्ली तुर्किश थे उन्हीं के यहाँ से क्या हो गया, ये स्लेब वाला सिस्टम शुरू हो गया. उन्हीं लोगों को स्लेब बनाना शुरू किया. उनके जो स्लेब मीन्स द नियरेस्ट पीपल ऑफ द किंग यू कैन से, और द फेथफुल ऑफ द किंग. राजा का जो सबसे अच्छा वफादार होता था, राजा का सबसे नज़दीकी जो होता था, राजा जिस पर विश्वास कर सकता था, दे वर नोन एज द स्लेब ऑन दैट टाइम. उसको हो सकता है क्या हो, राजा के जो अपने सगे संबंधी हो उतने उसके विश्वास पात्र न हो जितना उसका क्या होगा, स्लेब उसका विश्वास पात्र होगा. इट मीन्स जब एक राजा क्या होता था अपने राज्य के जन्म आता था लास्ट में, तो ये मान सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा किसी अपने फैमिली से भी ज़्यादा भरोसा करता था. तो कौन होता था उसका
स्लेव होता था। अब स्लेव पे तो अब स्लेव राजा को मानते थे, वो अपने गॉड की तरह राजा को मानते थे। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कहा गया है कि जो स्लेव थे वो राजा के जो फैमिली मेम्बर थे उन्हें उतना अच्छा नहीं मानते थे, उनके साथ उतना विश्वास नहीं करते थे, तो राजा भी उन्हें बहुत अच्छा मानते थे हैं। अच्छा, ये हो गया। सो लर्न द हाउ विल यू लर्न द नेम ऑफ द दिल्ली सल्तनत से rulers of Delhi Sultanate according to their dynasties. So dynasties are the Slave dynasty, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, Lodi dynasty. Okay. So slave dynasty is also known as the early Turkish rulers. So once again, slave, Khalji, Tughlaq, Sayyid, Lodi. Slaves ruled over the 1266 to 1290. Then Khalji dynasty 1292 1320. Tughlaq dynasty 1322 1414. Sayyid dynasty 1414 to 1451. Lodi dynasty 1451 to 1526. After the 26, we will study in the next chapter about the Babur and the Mughal dynasties. Okay, so how will you learn these dynasties? So as you can say, only the SKTSL, SKTSL, S for the slave, K Khalji, T Tughlaq, S Sayyid, and L Lodi. These are the simply learning method SKTSL. You can also follow any other methods. You can also apply. You can make any other shortcuts. और इसके बाद इनका जो रूलिंग हमने बताया था 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1526, दैन द स्टार्टिंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। ये लर्निंग हो गया। अब ना जो इनके इनर जो रूलर्स दिए गए हैं, हर डायनेस्टी के इनसाइड जो पावरफुल रूलर्स हुआ करते उनके नाम केवल दिए गए हैं। एज द अर्ली तुर्किश रूलर्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज द slave rulers of slave dynasty. So there are the first king was the Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak rules over for the 4 years, 12,600, 1262, 1210. Then the Samsuddin Iltutmish. Iltutmish after the Qutbuddin, Iltutmish became the रूलर 1210 टू 1236 है। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक सबसे ज़्यादा रूलिंग का आ गया, जो सबसे ज़्यादा रूलिंग किया है वो कौन है, इल्तुतमिश। देन रजिया, हाँ हिज डॉटर रजिया 1236 टू 1240। अब इसके बाद क्या होता है, जो इल्तुतमिश होता है उसके बाद उसकी जो डॉटर है वो रूलर बनती है, उसका नाम क्या है, रजिया। रजिया वाज द डॉटर ऑफ द इल्तुतमिश। शी रूल्ड ओवर फॉर द 4 years ओनली। इससे पहले भी हमने एक क्या कहा था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ही ऑल्सो रूल्ड फॉर द 4 years, बट हिज टाइम ड्यूरेशन वाज द टाइम पीरियड वाज द 1260 टू 1210। द टाइम पीरियड ऑफ द रजिया वाज द 1236 टू 1240। यह हो गया। देन आफ्टर द रजिया, द kingdom of the slaves were the dismissing, you can say, and not remain settled. Then one more powerful ruler of this dynasty, his name was the Ghiyasuddin Balban. Ghiyasuddin Balban. He ruled over 1266 to 1287. Then the other weaker rulers up to 1290. Then this is the starting of the Khalji dynasty. Khalji. So Khalji dynasty, first Jalaluddin Khalji, then was the Alauddin Khalji.
जलालुद्दीन खलजी के बाद कौन बनता है? अलाउद्दीन खलजी बनता है। जलालुद्दीन खलजी वॉज द फाउंडर ऑफ द खलजी डायनेस्टी 1290 to 1296 and 1296 to 1316. It means these are the only two powerful rulers of the Khalji dynasty. After the Alauddin, maybe it was the also remain uncertain for the next 4 years. After the Tughlaq dynasty came into existence. तुगलक डायनेस्टी वहाँ पर क्या हो जाती है, अब एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो तुगलक डायनेस्टी में हमारे कौन कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, वन इज द गयासुद्दीन बलबन एंड दिस इज द गयासुद्दीन तुगलक। सो गयासुद्दीन बलबन रूल्ड ओवर 1266 टू 1287। तो इसने कहाँ से रूल किया था? ही वॉज बिलोंग टू द स्लेव डायनेस्टी और अर्ली तुर्किश डायनेस्टी, गयासुद्दीन बलबन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गयासुद्दीन तुगलक who belong to the Tughlaq dynasty. So no need to confuse about the names. Okay. So he ruled over 1322 1324. Then Muhammad Tughlaq. After the Gayasuddin, there was the Muhammad Tughlaq. He ruled over 1324 to 1351. So Muhammad Tughlaq ruled over the Delhi 1324 to 1351. After the Muhammad Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq, 1351 to 1388. अब फिरोज शाह तुगलक यहाँ जा रहे हैं, तो आप ये बताएंगे फिरोज शाह के नाम से हमारे यहाँ दिल्ली के आसपास कौन सा एरिया जाना जाता है? तो ये आप मुझे बताएंगे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388. It means they are the only powerful rulers of the Tughlaq dynasty. After the ending of the Tughlaqs in 1414 completely, the Sayyid dynasty was starting 1414 to 1451. Sayyid dynasty is starting 1414 to 1451. तो यहाँ पर अब क्या हो गए? सैयद शाह आ रहे हैं। One is the powerful ruler of the Sayyid dynasty, Khizr Khan. Who was? He was the Khizr Khan. Khizr Khan, who ruled over 1414 to 1421. But the rules is known as the up to how many? This is the Sayyid up to the 1451. तो अब यहाँ पर क्या हो गया? केवल एक खिज्र खान का जिक्र किया गया है। खिज्र खान सैयद डायनेस्टी में जो एक यहाँ पर एक क्या माना गया है? पावरफुल रूलर माना गया है। और चलो अब इसके बाद जो बीच में कुछ क्या होगा? उठापटक हुई होगी। और उसके बाद क्या हुआ होगा? फिर से लास्ट में कौन सी डायनेस्टी आ रही है? लोधी डायनेस्टी। कौन सी आ रही है? लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी हियर इज ओनली वन रूलर नेम्ड बहलोल लोधी 1451 to 1489. But there were also some of the rulers, as you can say, Sikandar Lodi, Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was the last powerful rulers of the Lodi dynasty. He was defeated by the Babur 1526. So Sikandar Lodi ruled over the 1489 to 1517. After the Sikandar Lodi, Ibrahim Lodi ruled over. Bahlul Lodi was succeeded by his son Sikandar Lodi. बहलोल सिकंदर लोधी कौन है? अब उसका जिक्र तो नहीं किया है, बट उसका सिकंदर लोधी उसका सन होता है, बहलोल लोधी का है। और जो इब्राहिम लोधी है वो सिकंदर लोधी का सन है। इब्राहिम लोधी किसका सन है? सिकंदर लोधी का। अब वैसे हम किसकी बात करेंगे? सैयद डायनेस्टी की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या कहा गया है? केवल खिज्र खान की। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द खिज्र खान वॉज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का क्या हो गया? वो फाउंडर हो गया, उसको बनाने वाला। बट ही हेल्प्ड तिमूर इन हिज इनोवेशन. His successors, namely Mubarak Shah,
1421 to 1433. Muhammad Shah 1434 to 1453, and Alauddin Alam Shah 1443 to 1451 were weak rulers. Who are the weak rulers belong to the Sayyid dynasty? They were the Mubarak Shah, Muhammad Shah, Alauddin Alam Shah. They were the weak rulers. And the time period of the Khizr Khan 1414 to 1421. Mubarak Shah 1421 to 1433. Muhammad Shah 1434 to 1443. Alauddin Alam Shah 1443 to 1451. These are the rulers of the Lodi dynasty. So you have seen the tomb of the Firoz Shah Tughlaq and Alai Darwaza here. So the and is the tomb of the Iltutmish. Now move on next topic. Finding out about the Delhi Sultan से इट मीन्स हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में जानकारी कैसे मिलती है और कहाँ से मिलती है. ओके, एज यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री. हम हिस्ट्री के डिफरेंट सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्ट्री वर्ड फाइंडिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज लाइक द डायरीज एंड ज्वेलरीज, metals, that inscriptions, manuscripts, and tarikhs also mentioned here. So it means we also know about the Delhi from the different sources. अब कहाँ से पता चलता है? Here is written the तारीख and तवारीख. तारीख and तवारीख, these are the Persian language. Persian language के वर्ड हैं, तो इनका मतलब क्या हो गया? डेट्स. तारीख एंड तवारीख मीन्स डेट्स. कौन सी लैंग्वेज में है? पर्शियन लैंग्वेज. मे बी आज कर तारीख एंड तवारीख आर द वर्ड बिलोंग टू द व्हिच लैंग्वेज? दीज आर द इन पर्शियन. पर्शियन के वो हैं, शब्द हैं. तो तारीख सिंगुलर एंड तवारीख द प्लूरल. इट मीन्स डेट्स. सो वी नो अबाउट द दिल्ली फ्रॉम द तारीख एंड तवारीख से. यह हो गया. अब उसके बाद इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो ये फिगर से दिखाए गए हैं. यस, दे अब तारीख का कहाँ लिखते थे उस समय? पेपर्स में लिखते थे. तो पेपर का बनाने की प्रोसेस आपको दिखाई गई है. फर्स्टली वन पर्सन इज प्रिपेयरिंग द पेपर. अब पेपर को कैसे रगड़ के घोट के तैयार कर रहा है आप देख सकते हैं. दूसरे में क्या कर रखा है, वो जो पेपर है तो उस पर लिखने की कोशिश कर रहा है. एक उसने पेन ले रखा है और टेबल लगा के फंस बैठ करके अपनी जो स्टडी टेबल है वो बना रखी. जैसे आपके पास भी क्या होती है, अपनी स्टडी टेबल होती है, वैसे वो लिखने की कोशिश कर रहा है. वहाँ पर पेन है उसके पास, उसमें वो पेन के पास पेन इंक पॉट है. इंक पॉट में से क्या कर रहा है, इंक लेते जा रहा है वो. आजकल आपके पास क्या हो गए, जेल पेन हो गया, बॉल पेन हो गया, और स्पार्कल पेन हो गया, डिफरेंट हाईलाइटर हो गया, ये सब होते थे. ये है. बट हियर हाईलाइटर किससे यूज़ कर रहे हो लिख लख के? मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेज से. तो इम्पोर्टेंट जो मैटर है उसको हाईलाइट किससे किया जा रहा है? यहाँ पर गोल्ड से किया जा रहा है. गोल्ड को पिघला करके, सोने को पिघला करके. तो आप सोच सकते हैं उस समय की जो लिखावट होगी, राइटिंग्स होगी, वर्ड्स कैसे हार्ड होते होंगे करके, जिनको क्या किया जाता है हाईलाइट करने के लिए. तो गोल्ड ही क्यों किया होगा? गोल्ड इज बिलोंग टू द येलो कलर. येलो है और ब्राइट है, चमकता हुआ है येलो. तो इसलिए उनने क्या किया, केवल गोल्ड का यूज़ किया हाईलाइट करने के लिए. आजकल जो हाईलाइट का यूज़ आजकल आप लोग क्या करते हैं, एक हाईलाइटर का यूज़ करते हैं. मार्केट से 20 और 30 रुपीज़ का एक हाईलाइटर ले आया, उसमें से एक लाइन जैसे खींचती, आपका मैटर हाईलाइट हो जाता है. और यहाँ पर भी हम हाईलाइट क्या कर रहे हैं, उसको कॉपी करके उसके ऊपर एक आध लाइन मार के कलर करके उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं. लेकिन उस समय किससे कर रहे थे हाईलाइट? गोल्ड से. सो वन पर्सन इज मेल्टिंग द गोल्ड फॉर द हाईलाइटिंग द मैटर्स. द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू बाइंड द बुकलेट्स. अब बुकलेट्स क्या कर रहे हो, बुकलेट को बाइंड कर रहे हैं, बुक को लास्ट में लिख के सब तैयार कर रहे हैं आप. सो हियर द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्नड मैन
secretaries, administrators, poets, and courtiers, who both recounted events and advised rulers on governance, emphasis, and importance of just rules. So, who are the authors of तवारीख? अब तवारीख के जो ऑथर होते थे कौन होते थे? दे वर द इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज, दे वर द टैलेंटेड पर्सन ऑफ द किंग। राजा के बहुत सहयोगी होते थे और समझदार होते थे, होशियार होते थे। तो उनमें कौन कौन से पोस्ट उसने बता रखे हैं? सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कोटियर्स। तो दीज ऑल आर द ऑथर्स ऑफ द तवारीख। मे बी आस्क्ड टू यू, कहीं पर पूछा होगा, और नहीं भी पूछा है, जब आप क्वेश्चन फॉर्मेशन करते हैं तो क्या करेंगे, आप खुद ही लिखेंगे इस चीज़ को, हु आर द ऑथर्स ऑफ द तवारीख। तो आप इस यहाँ पर खुद लिखेंगे दीज मैन आर द और ऑथर्स ऑफ द तवारीख। ओके, ये लाइन हमने हाईलाइट भी कर ली है। सो नेक्स्ट इज द सर्कल ऑफ जस्टिस। सर्कल ऑफ जस्टिस, सो इट मीन्स सर्कल ऑफ जस्टिस का मतलब ये हो गया कि उसमें जो एक जस्टिस था एक सर्कल में हो रहा था। तो सर्कल ऑफ जस्टिस में कहा गया है कि जो एक किंग था, ही कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सोल्जर्स, बट द सोल्जर्स नीड टू सैलरी। फ्रॉम वेयर दे विल गेट देयर सैलरी? They will get the salary from the revenue which they collect from the farmers, and the farmers pay the revenue from the agriculture. It means the agriculture would be good, then they were able to pay the taxes. तो ये क्या है, एक पूरा एक सर्कल बना हुआ है फिर से। तो क्या हो, जब फार्मर क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेगा, जितनी अच्छी एग्रीकल्चर होगी उतने अच्छे क्या जाएंगे, टैक्स जाएंगे। फिर क्या होगा, उस टैक्स से क्या करेंगे, जो वहाँ पर सोल्जर्स हैं सिक्योरिटी पर्पज़ वाले, उन्हें रेवेन्यू लिखा है ना, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, टैक्स देना। रेवेन्यू मीन्स पे द टैक्सेस। रेवेन्यू लिखा है, यस। तो पे द टैक्सेस, आजकल भी हम टैक्स देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो उस टैक्स से क्या होगा, जो सोल्जर्स हैं उनकी सैलरी जाएगी, क्योंकि राजा का जो असली जो पावर है किससे है, उसकी सोल्जर से है। द किंग वॉज मच पावरफुल विद हिज सोल्जर्स, विद हिज आर्मी। जिस राजा के पास जितनी बड़ी सेना होगी वो राजा क्या माना जाता था, उतना ही शक्तिशाली माना जाता था, उसका जो एरिया था उतना ही बड़ा माना जाता था। तो इसलिए क्या होगा, उतनी बड़ी सेना को रखने के लिए उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। अब सैलरी देनी होगी तो कहाँ से देंगे, ये एग्रीकल्चर से जो टैक्सेस आते थे वो कहाँ से देते थे। अब एग्रीकल्चर कैसे होगी, जब इसका मतलब क्या होगा, सबका ध्यान एग्रीकल्चर पर होगा, एग्रीकल्चर हमारी अच्छी होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक। आजकल भी क्या हो गया, आप इस समय सब घर पर हैं तो अभी भी क्या है, सरकार का पूरा ध्यान अदर फैक्ट्रीज पर कम और किस पर ज़्यादा है, केवल एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर इज द बेसिक नीड। विदाउट एग्रीकल्चर वी कैन नॉट थिंक एनी अदर मोर। उससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो सही है, बेसिक इंडस्ट्री कह सकते हैं आप एग्रीकल्चर, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अभी किसने लिखा है, ये फख्र ये मुदब्बिर ने लिखा है इन 13th सेंचुरी, सर्कल ऑफ द जस्टिस के बारे में, फख्र मुदब्बिर। फिर यहाँ पर लिखा है, डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। तो क्या आपको क्या लगता है, जो सर्कल ऑफ जस्टिस है ये सही से एक्सप्लेन किया गया है, या इसका क्या इन दोनों का रिलेशन, किंग और इसका रिलेशन क्या सही है करके। नेक्स्ट इज द कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। द authors of Tawarikh lived in the cities near the Delhi and hardly ever in village. And they often wrote their stories for sultans in the hope of rich rewards. These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on the birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. अब क्या कर रहे हैं, जो तवारीख के जो ऑथर्स हुआ करते थे, जो टैलेंटेड पर्सन हुआ करते थे, दे वर लिविंग मेनली नियर बाई द दिल्ली एंड इट्स एडजस्टेंट एरिया।
Then they often wrote about the सुल्तान। अब सुल्तान के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख दिया करते थे। क्यों लिख दिया करते थे? तो उन्हें क्या मिलेगा? अच्छा खासा गिफ्ट मिलेगा करके, इन होप ऑफ द रिच रिवार्ड्स। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions। अब ये क्या कर रहे हैं? ये उन्हें क्या एडवाइस देते रहते थे राजा को कि क्या करना है हमें? हमें बर्थ राइट के आधार पर ही जो राइट्स मिले हैं उसी आधार पर इसे हमें आगे बढ़ाना है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ इट मीन्स द वुमेन विल नॉट बिकम द रूलर्स। ये क्या करते थे? जो तारीख के जो राइटर्स थे उसे ऐसी एडवाइस दिया करते थे। किसको दिया करते थे? किंग को दिया करते थे। चलो अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट। इन 1236 इल्तुतमिश डॉटर रजिया सुल्ताना बिकेम ruler। The chronicler of the age, Minhaj Siraj, recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but was not comfortable at having a queen as ruler. No more the nobles happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240। So ये जो 13th सेंचुरी में कौन है? ये मिनहाज ए सिराज। He was mentioning about the Rajia Sultana। So who was Rajia Sultana? She was the daughter of the Iltutmish and became the ruler of the Delhi in 1236 to 1240। 40 में तो क्या हो जाता है कि जब रजिया सुल्ताना को क्या माना जाता है कि इल्तुतमिश की एक टैलेंटेड गर्ल्स होती है, गर्ल डॉटर होती है किसकी? इल्तुतमिश की। उससे लोग कहता है कि जो उसके जो अदर ब्रदर्स हैं उन सब में होशियार है वो, इसलिए उसको क्या बनाया गया है? एक क्वीन बना दिया गया। क्या बना दिया गया? क्वीन बना दिया गया। बट जो उसके जो राजा के दरबारी थे और जो वहाँ के नोबल पर्सन थे उनको क्या लगा? ये अच्छा नहीं लगा। तो उन सब ने मिल करके क्या कर दिया? वो सब एक हो गए तो क्वीन को हटा दिया गया। कब हटाया गया? शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, फ्रॉम हर पोस्ट ऑन 1240। 1240 में क्या कर दिया गया? उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया गया। अब उसके बारे में मिनहाज सिराज क्या कहते हैं अबाउट द रजिया? सो क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड इन विच women were supposed to be subordinate to men। He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all of her excellent qualities? So it means the becoming ruling or becoming the queen of the Raja Sultana, it was the against the social order on that time। उसमें लोग क्या मानते? इसे सब अच्छा नहीं मानते थे। तो इसलिए क्या कहा गया है? ऐसे ही उन्हें एक मिनहाज सिराज ने कहा है कि 13th सेंचुरी में कि ये क्या थी? होशियार थी। और क्या था? ये सोशल ऑर्डर के खिलाफ था, अगेंस्ट था। ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स रजिया मैंशनड दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी 1262 to 1289 of the काकतिया डायनेस्टी ऑफ द वारंगल पार्ट ऑफ द मॉडर्न आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर एक कौन किसका नाम दिया गया है? एक रुद्रमा देवी क्वीन है, उनका नाम दिया गया है क्वीन रुद्रमा देवी, जिनकी जो रूलिंग टाइम पीरियड है 1262 से 1289 तक है। तो किसकी थी वो? काकतिया डायनेस्टी की एक रूलर थी। कहाँ पर हो? को वारंगल है। वारंगल आजकल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश साउथ के एरिया में। रुद्रमा देवी changed her name on her inscription and pretended she was a man। अब क्या कर रहा है? जो रुद्रमा देवी थी उसने अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए क्या कहा कि ऐसा नाम उसने अपने आप को दे दिया कि आदमी क्या, लोग क्या सोचेंगे? सी वॉज अ मैन, कोई आदमी का नाम है करके। रुद्रमा देवी, रुद्रमा नाम दे दिया। रुद्रमा देवी बाद में जोड़ दिया गया होगा उस पर।
रुद्रमा, रुद्रमा करके आदमी क्या सोचेंगे कि कोई आदमियों का नाम है करके, वो करा कि उसने अपने आप को ऐसे एक्सप्लेन करा दिया। फिर ये कौन सी है, कात्यायन सॉरी काकतीय डायनेस्टी की थी, और ये आंध्र प्रदेश के आसपास की थी है। उसके बाद एक कश्मीर की है एक है उसका नाम क्वीन दिद्दा। क्वीन दिद्दा, दिद्दा मीन्स दीदी, DIDD, दिद्दा, another queen Didda ruled in Kashmir 982 to 1003. Her title is interesting in comes from the Didi or elder sister, and obviously affectionate term given to a loved ruler by her subject. तो अब क्या कर रहा है, जो दिद्दा था वो दीदी से लिया गया है, एल्डर सिस्टर से लिया गया है। तो वो भी कहाँ की थी, कश्मीर की रूलर थी। तो अब फिर क्या करता है, अब मिनाज सिराज की बात हो रही है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, फ्रॉम गरीसन टाउन टू एम्पायर, किसकी बात करेंगे, फ्रॉम गरीसन टाउन टू एम्पायर। आज हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक बार इसके कुछ फंडामेंटल से लिख लेंगे। क्या करेंगे, यू हैव टू नोट डाउन द फंडामेंटल्स ऑफ दिस लेसन एंड ट्राई टू राइट द क्वेश्चन फॉर्मेशन। ये हमारा आज के लिए इतना ही है, और आप सबको क्या करना है, अपना ख्याल रखना है। क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, घर पर ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, अपना काम करना है। हाँ, एक बात और है, तो आपने जो भी काम किया है एक बार मुझे क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कुछ अपनी कॉपी की फ़ोटो खींच के भेज देंगे, तब देखेंगे कि आप लोगों ने कितना काम किया, थोड़ा क्या प्रोग्रेस है करके। सही है।